pointers. Now, the topic is, which we have decided for today's discussion, is changing landscapes in our education system. And I tell you, it's not an easy topic. You have to think about various dimensions in this topic. It's not going to be an easy one. It should be that how many interactive points and innovative points you can present me in your discussion. Okay. So I'm giving you 3 minutes to think about the ideas. Go ahead, guys, think about it. And I think introduction can be done by Dishant, and the conclusion can be done by Suraj. Is it fine? Okay. So Dishant, are you? Ma'am, can we ask there like for explanation of the topic a bit like uh, I cannot tell you right now. No explanation, nothing. It will be on spot. Just saying that you don't know the topic and this comes in your final. How would you handle it? Dishant, are you there, or you want to participate, or you don't want to? You can inform us. Otherwise, we can change the person. I'll wait for 2 minutes. Anyone else who want to go for the introduction? Okay, so I am okay. The Shant is already left. Okay, so go ahead, guys. Varun or Shilpa, anyone who wants to join it out? Who wants to start? Okay, then it can be Satya for the introduction and Suraj for the conclusion. I will still. Okay, so think about the ideas now. Okay, everyone, it is 4:17, and I think we can start with the discussion. Satya would initiate the discussion, and the conclusion was to be presented by Suraj, right? It will be today, it will be till 4:17, it will be by 4:27, guys. Okay. Now the time starts now. okay. Satya, go ahead with the introduction. Okay. Good evening, friends. My name is Satya Assis, and I'm glad to start the group discussion today. The topic we have been given today for the discussion is changing landscape in education system. I think this is a great, interesting topic to discuss. Uh, I believe the education system in India is now turning towards a bit towards online certification and courses which are uh, getting used in the corporate sectors. Uh, like according to those courses, people are getting enhancing their skills. So now I open the table for you guys to discuss. In Indian context, education system has given more emphasis on rote learning, that is memorizing the concepts. Then it was relying on the textbooks more, and there was no scope for creativity for the students. And also textbooks do not explain how the concepts are relevant to the practical life. So there is necessity for the change in education system, and new education policy has giving emphasis on the development of individual creativity and the potential. So the changes are necessary, and the many changes are occurring now. So Yes, I think that the major reason for change in the landscape is because of the jobs. Earlier, most of the jobs were of service sector, so people generally focused on bookish knowledge, etc. But this is the era of internship, entrepreneurship, startups, etc. So in today's era, people need to have practical knowledge. So skill based learning should be focused on. That's why the nature of education is changing.
Yes, Varun, I am agree with you, and I would like to add some more point. Like you said, we generally uh, use the study for only getting the job, like government job or another sector, private job. But we should not creating our skill in other skill development. We can go for other sector like uh, sport, dancing, or uh, in means other management skill, event management skill also. So we should uh, change like that. We should not only are getting the job, we are getting government job. I guess we can choose other means we can choose other job like we passionate about that job. Uh, Yes, government has taken care of the employability question. Vocational education is imparted into the mainstream education for increasing the employability of the students and also to increase the gross enrollment ratio and access to the education. Government is giving more importance to the distance learning and the MOOC courses for the as much as importance as the physical learning. Yes, I am agree with you. Today, education system is only based on the achieving the marks and good grades in academic section, but we are not learning the actual thing and not learning the practical things, and we have a lack of our education, which is based on only vocational education or training based. So, in our education, there should be a this type of education system in which it include training based or vocational education, and in every year, if I am in first year of the engineering, then I should have such type of knowledge. After doing the first year, I will get job. If I will incomplete the education, matlab, I will not complete the whole fourth year 4 year. Then if I am in second year or third year, then if I will quit there, then I will also get job without completing the full year. I would like to add a point. Like I believe the landscape is changing also because like students are getting more aware about the more not getting aware, but also focusing on getting jobs. So they are being from any branch, they are going for some digital or IT sector jobs courses like coding in Python and etc. And they are getting certifications through that. So because of that, there is like a bit change in the education system from the student side as well. I believe. Yes, Satya. Yes, Satya, you are. Yes, Satya. Earlier, the I, technology was not that much advanced, but with time, the technology is changing very fast. Yes. So people need to be upgraded with the new technology. So it is also becoming a cause for the change in landscape of education system. Another thing is that syllabus which we are studying nowadays are also not used in industry. So the syllabus needs to be also updated according to the new trends. yes, Varun, I'm agree with you. Like syllabus are to be changes as per the requirement. And in addition, I would like to add some more point. Like we should change the infrastructure of schools also, and we should increase the teacher where are not available in that ratio. Means as per the student presence in that school or college, and we should increase the facility of the schools like lab and are doing any extra activity like sports, singing, dancing, and we should also uh, increase the we know that foreign teachers salary compared to our Indian Yes, teachers. So we should yes, also I am agree with you. One of increase the the most salary as per premier the institute. requirement of.
Yes, bro. I am agree with you that one of the premier institute like VIT Vellore, which included in their course curriculum. Uh, uh, if I am in DLSI, then if I got placed in Intel, then the in training period, what they will learn there, the VIT Vellore is included in that course with the help of Intel, so that in their course curriculum they are teach that the requirement what required to the particular company to work there. Yes, Yeah, I Gopal, agree I with you, agree with Gopal. you. Like But some days I also ago, think that I read there on has the been internet the that change in the. Harvard professor's salary is nearly 16 lakh per month. But uh, Indian professor salary are like 40,000 per month, and we know that as in current time, maximum professor appointed as on contact basis. So it should be changed in this direction also. Like it should be not be on basis because we know that if we work on contact basis, so we cannot utilize our main potential. Fully potential we cannot utilize. I I think would you like are to add a point. I believe yeah. the change in landscape in the education system is because it majorly took place during the COVID period because online teaching came into effect, a large effect during that period, and because of that, a lot of new teachers, good teachers, have also been introduced. That has impacted a lot on our education system. I think that Yes, I am agree with you that Thanks. a lots of students which are not able to living in a city like Delhi and doing the mid coaching, they are living their on home place and taking online coaching, and they are getting benefited from that. I think that practical learning is So also one friends, of the most important part of the learning. So nowadays equipping the students with good laboratory knowledge and good practical experiments is changing the landscape because people are now learning the new high level skills like artificial intelligence and machine learning, which is helping them grow and get a decent job. So Okay, Suraj, now if you would like to okay, conclude or. yeah. So thank you, friend. This was the healthy discussion, group discussion on the changing landscape of education system, and we uh, added more plus point we should not focus on remembering. We should focus on practical knowledge, and we should include internship or extracurricular. We should encourage distance learning is given by Satya. Okay, guys, I think that that's already ended. And listen very carefully. I've attended many GDs on education. I tell you that from your team, this was a pathetic one. You told that this topic is very easy and education will be an easy topic, though you were not able to speak on such an easy topic too. You understand the very first thing is that changing landscapes of education system के बदलते पहलू स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? गुरुकुल से। गुरुकुल के बाद क्या आ गया? पॉलिसी बन गई, जो आप लोगों ने 10+2 पॉलिसी की। अब क्या चल रहा है? एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। जो आप लोग बात कर रहे हो वोकेशनल कोर्सेज, जो आई थिंक वरुण ने बोला स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है ये चीज, and that showcases how much you're aware about these things in your this topics. आपको अकेला न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ सकता है, उसके बारे में क्या टेक है, क्या स्कूल्स ऑप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 2020 में ये पॉलिसी पास हो चुकी है, 2030 तक सारी जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स बताई हुई वो तो पहले ही फॉर्मुलेट हो चुकी है सरकार की तरफ से, एंड दैट शोकेसेस हाउ स्मार्ट यू गाइस आर। कितने स्मार्ट हो, है ना, खुद से सजेशन दे रहे हो, यही नहीं पता कि गवर्नमेंट कर भी चुकी है ये चीज। आप लोगों ने फ्लॉज बताए। अच्छा, सबसे पहले पोस्ट कोविड के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, किसी ने बात की? किसी ने नहीं की। व्हाई? सभी लोगों ने अननेसेसरी चीजें मेंशन की। हाउ इट स्टार्ट्स अस लाइक, यस देयर आर लॉट्स ऑफ, यू कैन से द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ education means that education has changed its extent to a beyond certain level.
The way we started was from Gurukuls, and we used to take in an open environment, and then we started from a classroom teaching. In 1968, पहले ध्यान से सुन लो ये नंबर्स, और कभी भी एजुकेशन का आ जाए ये कुछ लाइनर्स डाल देना। 1968 में सबसे पहले पॉलिसी पास की गई थी। 1968 के बाद 86 में इम्प्लीमेंट हुई, 1992 में उसकी दोबारा इम्प्लीमेंटेशन हुई, जो कि हम फॉलो करते हैं। हमने सबने 10+2 एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था, पढ़ा यही है ना, 10+2 सबने पढ़ा है। अब उन्होंने बोला है 10+2 खत्म कर दिया। 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं, और उसमें क्या आ जाता है, उसमें रिफाइनमेंट दिखाते हैं कि अब क्या है, बच्चे रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकल पे भी उतना ध्यान दिया जा रहा है। there's a noise at the back of Satya. I'm muting you out, okay? So there is कि वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इंग्लिश एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, हिंदी एसएसटी और मैथ्स कर सकते हो इकट्ठा। मतलब इस तरह से उन्होंने ये ओपन स्पेस कर दिया है। 4 साल का आपका बीटेक डिग्री होता है, बट उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर किसी को लीव करना है, सेकंड के बाद उन्होंने दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स, थर्ड के बाद डिग्री, एंड फोर्थ के बाद उन्होंने प्रॉपर डिग्री का उन्होंने प्रॉपर क्या करने शुरू कर दिए, क्रेडिट कोर्सेज, क्रेडिट पॉइंट्स ऐड करने शुरू कर दिए। किसी ने इस चीज के बारे में नहीं बोला। 5+3+3+4 अब ये सीक्वेंस चलनी शुरू हो चुकी है एग्जामिनेशन की, कि अब मेन एग्जामिनेशन किसके बाद होंगी, 5वीं क्लास के बाद, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर उसके बाद आएगा या 4 सिस्टम। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो मास्टर्स है दैट हैज बीन टू बैचलर्स और मास्टर्स आप कंबाइन कर सकते हो, 4 इयर्स की कर दी है। So there are certain things which have been changed. The very good point, if I have to select one, same way Varun has done today also. आपको पता है किस बेसिस पे आप लोग सिलेक्ट होते हो, और जीडी में बहुत लोग एलिमिनेट भी होते हैं अगर आप कोई एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हो। जैसे वरुण ने यूज किया स्किल बेस्ड लर्निंग। स्किल बेस्ड लर्निंग एक एक्ट वर्ड आ जाता है, जार्गन आता है जो नीडेड था इस टाइम के लिए। आपको कुछ ऐसे जार्गन यूज करने चाहिए, आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आपने बहुत जीडीज में देखा होगा, एक बच्चा क्वालिफाई करता है, 2 क्वालिफाई करते हैं। इफ यू आर डूइंग द सेम वे यू विल बी डिसक्वालिफाइड। और मुझे ये नहीं समझ आती, ये टॉपिक्स मैंने पहले करवाए हुए हैं, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं खोल के देखते हो, या वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो? अगर पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन हैं इन चीजों के, ऑलरेडी बिन देयर, यू हैव टू। मैंने कल एजुकेशन बोला था, खोल के क्यों नहीं आए? डायरेक्ट जाते वेबसाइट पे, एजुकेशन पर टॉपिक पढ़ा था, पढ़ के आते हैं। इकोनॉमी पे टॉपिक पढ़ा था, ये वाला इम्पैक्ट वाला, सेम वे आई हैव रिटन इट आउट, पॉइंटर्स मिलते हैं आपको। आप अपना तो इनोवेट करो ना, यू डोंट हैव टू सी बाकी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, दैट मैटर्स। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, कल भी हम दोबारा से एजुकेशन ही लेंगे, बिकॉज ये आपको टॉपिक नहीं आता। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भाई पढ़ के आओ, ओके, गो एंड रिसर्च फॉर दैट थिंग। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आओ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो भाई उसको वीडियोस, मॉक वाले इंटरव्यू चैनल पे चले जाओ, ये टॉपिक टाइप कर दो, वीडियो आ जाएगी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उससे पॉइंटर्स देख लो। ये तो आप कर सकते हो, हार्डली 5-7 मिनट्स लगेंगे आपको। कि ये भी टफ टास्क है, ये टफ नहीं है, बट एटलीस्ट जो जो पॉइंटर्स है, पॉलिसीज के नंबर आपको याद होना चाहिए, 68, 86, 92, देन 2020, ये 4 इयर्स याद हो गया एजुकेशन में। फिर आपको याद होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी डालना, फिर डालना चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन, ब्लेंडिंग ऑफ बोथ, हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट हो गया। अब कितनी जगह पे हाइब्रिड मॉडल होता है? अभी भी स्कूल्स में क्या हो रहा है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, गर्मी ज्यादा है, राइट, द स्कूल्स दे आर नॉट इन द स्टेट टू रीओपन, वो क्या कर रहे हैं, कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। In many schools which are related to CBSE and all that, in Chandigarh also there are some certain schools, they are starting their online classes because they are not feasible for the students to come. अब टीचर और स्टूडेंट में गैप कम हो गया है। पहले होता था गैप, अगर बच्चों की 20-30 दिन छुट्टियां जाएंगी, अब वो ऑनलाइन पे उनको बार बार कनेक्ट करते रहते हैं, तो बच्चा हैम्पर नहीं होता। किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। तो हमेशा जब आप क्वेश्चंस के पॉइंटर्स लिखते हो ना, हेडिंग्स डाला करो, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट, हाइब्रिड मॉडल, NEP which was being introduced, vocational course training जो आप लोगों ने बोला, skill based learning, employment वाला पॉइंट अच्छा था, that was a very good point. I think that was started by Varun and then शिल्पा ने भी उस पर वो दिया, टेक दिया। गोपाल का वोकेशनल बेस्ड ट्रेनिंग का आया पॉइंट, लिंक था, वो भी अच्छा पॉइंट था। वैसे पॉइंट्स आप लोग के बुरे नहीं थे, बट दे वर नॉट वेरी इफेक्टिव एट द टाइम यू शुड स्पीक। आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, क्या नीड है उस टाइम की, कौन सा पॉइंट बोलना है, कौन सा नहीं बोलना। सेम वे सूरज, लेंदी पॉइंट्स आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम थी वैसे भी आपकी, तो आपके पॉइंट्स कट हो रहे थे, तो क्लियर ही नहीं था। थोड़ा नेटवर्क को थोड़ा देखा करो व्हेन यू आर स्पीकिंग, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ जेन्युइन फीडबैक, ठीक है। वरुण, गुड वन कंपेयर टू अदर्स, आई वोंट से गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर बाकी बहुत अच्छे आ गए तो उसमें एवरेज हो जाओगे,
बट अभी इन कंपैरिजन टू 5 यू वर द गुड वन, यू वर द बेस्ट अमंगस्ट ऑल दीज. ठीक है. शिल्पा, शिल्पा यू, इट्स योर फर्स्ट टाइम. शिल्पा, यू देयर? I think there's a network lag. Okay. Next, Satya. Satya, you started. Second time. Second time है. पहले कब कल लगाया आपने? चलो चेक योर नेटवर्क. सत्या, क्या होती थी सीक्वेंस जीडी की? टेबल फॉर ओपन, पता नहीं क्या बोल रहे हो, है ना? भूल गए थे सारा. और ये सीक्वेंस मैंने 1000 बार हर मैं वीडियो में बोल रही होती हूँ. सोचो इतनी माइन्यूट चीज नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे जीडी करोगे? वो सारा वही उल्टा. टॉपिक टॉपिक का ही कुछ आइडिया, पॉइंट्स नहीं आ रहा था तो उसमें मतलब नहीं आता ना कंफ्यूज हो गया. टॉपिक का पॉइंट. अगर देखो टॉपिक नहीं आता, पता क्या करा करो, उसको सिंपल छोड़ दिया करो. आपको मैंने 5 चीजें बताई है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मुझ सपोज करो आपको ये टॉपिक का मतलब ही नहीं क्लियर हुआ, आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है. सपोज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सत्या, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ टुडेज ग्रुप डिस्कशन. द टॉपिक विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस, इट इज चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन. आप क्या कर दो, वी ऑल नो एजुकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन पे एक आधी लाइन बोल सकते हो? एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वाइटल है हमारे लिए, एंड वी ऑल नो इट इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. कुछ मत बोलो कहाँ चेंज हो रही है, क्या हो रही है, आपने क्लैरिटी दी ही नहीं. ठीक है. आई वुड लाइक एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, एंड नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन. बेटर देन द वे यू स्पोक. मत बोलो डेफिनेशन. स्मार्ट ट्रिक फॉलो करो, देन हार्ड दैट योर हार्ड वर्क. मतलब नहीं टॉपिक आता तो उसको वाक्यों को ऐसे कॉनोटेटिव सिंपल मीनिंग देने की कोशिश कर लिया करो. ठीक है. या एजुकेशन की कोई कोट याद आती है, डिफरेंट फिलोसफर्स हैव बीन देयर, दे हैव ऑलवेज बीन. एजुकेशन हमारी वाइटल है, हमारी इंडिया की एजुकेशन लेवल है, वो भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो हम उस चीज पे कौन एजुकेटेड है कौन नहीं, कोई भी फिलोसफर पे बोल दो एक लाइन. सिंपल मैंने जनरिक बोला ना, तो हमेशा ये देखा करो सपोज नई टॉपिक आता तो कैसे हैंडल करना है. फिर बाकी कुछ की तो आपकी सारी की सारी टीम की ही डायग्रेशन की दो, सारी टीम डिस्क्वालीफाई होगी. ठीक है. और एक बच्चा अगर बचेगा तो दैट वाज वरुण, इन केस ही वुड हैव सर्वाइव्ड इन दिस जीडी, क्योंकि उसका पॉइंट रेलिवेंट था. वो बाद में जाके एम्प्लॉयमेंट पे आना ही आना था, बाकी का नहीं होगा. ठीक है. सेम भी गोपाल, गोपाल के पॉइंट्स भी वही थे. वोकेशनल बेस्ड ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हो, पॉइंट ठीक था आपका इसमें, पर वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है गोपाल, एंड वो तो अभी भी चलती आ रही है. आज भी बच्चे लेते हैं ट्रेनिंग, ये वाला शेड्यूल्स चलते हैं. फॉरेन में ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है. हमारे यहाँ पे अब बाहर जाके बच्चे, इंडियन स्टूडेंट्स, दे आर वेरी गुड टू वर्क इन अ रिटेल शॉप, डूइंग द प्लम्बिंग एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, कारपेंटरी करना, हैंड स्किल्स की लेबरिंग कॉस्ट बहुत अच्छी है बाहर. यहाँ पे वही चीजें करने लगे, उनको दिक्कत है. They consider it out because here in India the status of a carpenter plumber is considered quite low. It's a group D1 आ जाता है. वहां पे आके हैंड स्किल वर्क को बहुत अच्छा ऑपरेट किया जाता है. यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं कि हाँ, दे स्टार्ट लर्निंग कि हम क्या करें, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लें या फिर किसी सैलून में काम करना सीख लें, बिकॉज वहां पे हैंडवर्क की बहुत ज्यादा वैल्यू है. मेड की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है वहां पे, अफोर्ड नहीं कर सकते. यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे एवरी पर्सन, एवरी हाउस होल्ड हैज अ मेड. तो डिफरेंसेस आर देयर एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू लिंक. ठीक है. ये चीजें ड्रॉबैक्स नहीं है एजुकेशन के. एजुकेशन में वोकेशनल ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुका है, काफी टाइम से कर चुका है, और अब तो सब कोर्सेज और भी बेटर वे में हो चुके हैं. थोड़ा पढ़ के आओ, सेम टॉपिक कल तक रेडी हो जाएगा. बताओ ऑल ऑफ यू. यस मैम. इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अकेला टॉपिक भी दे सकती हूँ, एनईपी. इसको पढ़ के आना है आप लोग को, क्योंकि अगर आप ये एजुकेशन प्रिपेयर कर लोगे, इसमें आपके चैलेंजेस क्या है करंट एजुकेशन सिस्टम के, एडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, सारा इकट्ठा हो जाएगा टॉपिक. एक एजुकेशन सिस्टम से हम 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं. whenever you prepare one topic, you don't prepare for a single topic. ये एक टॉपिक किस तरह से आ सकता है, what are the changes which are being brought by the government in the education system, list out the recent developments in education system. Education system going in which direction, is it directionless? तो आप बोल सकते नो, इट हैज पोर्ट्रेड अ डायरेक्शन, हम कहाँ से मूव कर चुके हैं. फिर एजुकेशन सिस्टम सिंपल आ गया, ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, हाइब्रिड मॉडल, ये सारा इकट्ठा आ जाएगा. एक ही टॉपिक से 4-5 चीजें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास जेनरिक पॉइंट्स होंगे, आप कोई भी पॉइंट बोल सकते हो वहां पे. इस तरह से आपको तैयार करना है. क्लियर. कभी भी एक टॉपिक को एक तरह मत तैयार करा कर. कल तक ये टॉपिक रेडी होना चाहिए, चाहे इसकी वीडियो देख के आओ, डॉक्यूमेंटेशन देख के आओ. अभी कोई डाउट है तो पूछो. एनीवन? नहीं मैम वो मैम 90
8th में क्या एजुकेशन पॉलिसी थी, फिर 1986 में आपने रिपीट किया था वो पढ़ के आना। नेशनल पहले है नेशनल, अब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई था। 1992 में एनपीई की अमेंडमेंट हुई थी, ये पढ़ लेना, ठीक है। 1992 में 86 वाले की अमेंडमेंट हुई थी, 68 में पहली पॉलिसी पास हुई थी। ईयर्स एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं याद होते तो सिर्फ 2 ईयर्स याद रख लेना कि 1967 67 ही था, आई थिंक 67 68, आई गॉट कंफ्यूज्ड राइट नाउ, 67 ही था या 68 था, उसमें पहली पॉलिसी पास हुई थी। सीधा 2020 की बात कर लो अगर नहीं याद होता बीच में, ठीक है। 10+2 सिस्टम कहाँ से आया था? 86 वाले से आया था, 92 छोड़ दो, तो पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा सा। और ये कुछ भी नहीं याद कर सकते तो 2020 ही याद कर लो, वर्ड 2020 तो याद कर सकते हो, जो इजी है। मैं बोलती हूँ सारा नहीं याद करना, एक टॉपिक से 5 चीजें याद कर ली ताकि कुछ भी आ जाए हम उसमें डाल दें। एजुकेशन आ गया तो ये डल जाए बस। हमारा हैक होना चाहिए, हमारी स्मार्ट वर्क होनी चाहिए, हार्ड वर्क मत करो। मैं नहीं प्रमोट करूंगा, ठीक है, क्लियर है। एनपीई, ऑफलाइन ऑनलाइन, ब्लेंडिंग, हाइब्रिड मॉडल, गुरुकुल्स, ये सारी चीजें आ गई एजुकेशन में। हाँ, ये कर सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम में और क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। पेपर का पैटर्न याद करना, आई थिंक इट इज 5+3+3+4। पूरी को रिवाइज कर लेना कि मैं गलत बोल सकते इस टाइम पे, आई माइट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। सीक्वेंस पढ़ लेना एनपीई। क्रेडिट कोर्सेज आ जाता है, क्रेडिट कितना मिलता है। अब सारे कॉलेजेस में क्रेडिट सिस्टम है, कैसे क्रेडिट सिस्टम अर्न करते हो, क्रेडिट पे भी एक बार आ सकता है, पढ़ लेना। क्योंकि कॉलेजेस में एंड ऑल दैट जब आप पास आउट करते हो तो जीडी में आ जाता है कि क्रेडिट कैसे अर्न कर सकते हैं, यू नो अबाउट द रीसेंट क्रेडिट सिस्टम, तो वो चीजें आपने पढ़नी है। क्लियर? या सूरज, यू वर आस्किंग समथिंग? मैम जैसे मैं बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लाइक स्कूल पेरेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो ये भी सब तो ऐड कर सकते थे ना। सॉरी मुझे समझ नहीं आया सूरज। मैम जैसे मैं किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के मतलब स्कूलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एंड टीचर्स के लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसके सैलरी पर भी बात किया था, ये भी तो इसमें इंक्लूड होगा ना। Can anyone speak this point because the voice is being cut? सूरज का नेटवर्क नहीं सही आ रहा। Anyone who understood? He is talking about infrastructure development, ma'am. Infra development, it can be like, ये आप जनरिक में डाल सकते हो। बेसिक आएगा करिकुलम की डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा सूरज इसमें। होलिस्टिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द दैट, जो अगर आप गुरुकुल के चेंजेस बोल रहे हो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, लैब्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप टिंकलिंग लैब, हाँ वो आप ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, मैंने भी नहीं बोला, चैट जीपीटी आप ऐड कर सकते हो, एआई टूल्स आप ऐड कर सकते हो। राइट नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स चैट जीपीटी, वी हैव मूव टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है। इवन आई फॉरगॉट इट आउट व्हाइल स्पीकिंग इट आउट, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डायमेंशन बन सकता है। प्लस आपका इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, पहले बच्चों की सिर्फ रोट मोटिफिकेशन, जो आई थिंक स्टार्टिंग में नेहा ने बोला था, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, एंड देन इट इज नाउ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। अब देखो उनको ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, थ्योरेटिकल कम कराया जाता है, तभी पेपर का उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, करिकुलम में चेंजेस, देन इट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है, क्लियर। कल तक ये सेम टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए ताकि एजुकेशन का जब भी नाम आए आपको पॉइंट्स रटे हो कि क्या बोलना है, ठीक है। टुमारो विल बी द लास्ट डे वी आर डूइंग इट ऑन एजुकेशन, डोंट मिस इट आउट। आई विल टेल यू द पॉप ऑफ द टाइम कि किस टाइम पे होगा कल ये, ठीक है, क्लियर। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।